Let us start. So, in the last lecture, what we talked about was uh, we tried to evaluate and we learned how are we going to obtain shear force and bending moments and for a two dimensional case when a beam geometry and the loading over it is such that it can be modeled as a problem in two dimension. So then here we talked about the steps. What are the steps involved in solving this problem? So first of all, what we will isolate the structure from the supports, and then we will apply all the forces from the support. Here in this case, cantilever beam has been isolated. So here this cantilever beam has been isolated over here, and then uh, we applied the equilibrium condition, that is net forces in x direction and y direction are 0, and similarly net moment is 0, and so using these equilibrium considerations we get the support reactions, and then uh, to apply to know the internal forces involved, we will try to cut a section. Like here in this case we will try to cut a section over here and then apply the moments, apply the equilibrium condition, and then evaluate the internal forces involved. So now in the last lecture we were only able to evaluate the support forces. Now we will start how to find the internal forces. Okay, so let us take the same problem, which was like a beam and it was supported by two reactions RA and RB, and then a weight W is being applied at a location B from this end, and total distance between the two support is L. Then now our question is, or our interest is to find what would be the internal forces involved in this uh, beam. Then what we will do, we will try to make a section. Let's make a section over here at a distance x from the support. It is an imaginary section, and what we will do, we will just separate the two parts. And then apply all the forces involved RA
and here RB. Now tell me what forces will be involved on this phase. What forces will be involved? Can someone tell me? Okay, before proceeding, we have to make axis. This is X and this is Y. Now two forces, internal forces will be involved. So axial force or shear force Shear force and and, axial force. and Axial. axial force. Okay, he is saying one shear force and one axial force. Okay. Will there any more force or moment will be involved over here? Anyone? Vasu? Yes, sir. Tell me, will there be any more force involved? No, sir. That is shear force and axial force takes place. Will there be any moment? Um, yes, yes sir. मोमेंट का थोड़ा वो नहीं हो रहा सर. सर होगा हाँ, लेकिन मोमेंट होगा. moment होगा. Yes sir. Okay. About which axis? Uh, So z axis पे. About X z that axis. Okay. Should I put it as clockwise or anti-clockwise? On the left part. anti-clock. Anti-clockwise. Anti-clockwise. Okay. Now, can someone tell me the direction of F over here is like this, and the reaction forces on the other part, is it right? So force का डायरेक्शन उल्टा होगा. ओके. किसने कहा ये फोर्स का डायरेक्शन उल्टा होगा? कौन कौन से फोर्स का? किस पे? लेफ्ट वाले पार्ट पे या राइट वाले पार्ट पे? राइट पे. राइट पार्ट पे फोर्स का डायरेक्शन उल्टा होगा. ओके. What he is saying is like this. Is it correct now? Muhammad Aziz. Aziz, are you there? सर अजीज कोई नहीं है क्लास में. Huh? अजीज कोई नहीं है क्लास में. Okay. Azim. Is it Azim? Yes, Azim. Azim? Okay, Azim is not present. He has only logged in, right? Okay, who else is there? Ataur Rahman. Okay, anyone else? Abdul Rahman? Muhammad Imran? Tushar Gupta? Am I audible? Yes, sir, you are यस सर ऑडिबल यस है सर. सर. ऑडिबल सर. सर Okay. फोर्स के सर डायरेक्शन सही है सर. Force, दोनों forces की direction. What about the सर shear अब सही force? है. Part
left part is applying Hello, the yes force. sir, sir, Tushar Gupta sir. Where were you? I'm just go for bathroom, sir. Okay. So can you tell me the direction of forces are right or wrong? Tushar. Yes sir, yes sir. Yes, I think sir they are right sir. they are right. So the left part is applying a force V in downward direction on the right part, and the right part is also applying a same force in the same direction on the other part. Is it correct? Yes sir. No, sir. No, sir. The direction, देखिए दो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, एक V और एक F, और एक मोमेंट इन्वॉल्व है M। अब राइट पार्ट पे जो लेफ्ट पार्ट अप्लाई कर रहा है वो हमने इस फिगर में शो किया कि एक फोर्स F है जो कि एक्स निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, एक फोर्स V है जो कि निगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो एज पर द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, the right part will apply an equal and opposite force on the left part. So direction of V should be opposite. So what I am doing this thing. Okay, Tushar, now tell me, is it right now? Yes No, sir. it is not right. The direction of force I have flipped. Is it correct or is it still wrong? So I'm not confirmed, but I think it is wrong. Okay. You are somewhere outside. Fine. Okay, anyone else? Is it correct? Muhammad Anas, right? Yes, sir. Sir, Yeah. wrong. Yes. Okay, so what should it be? According to our convention, it should be this one is correct, and we have to reverse this. Okay, now what will we do? We will apply the net forces, equilibrium condition. So net forces in x direction is equals to 0. What will it give us? पार्ट वन पे कौन कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, कितने फोर्सेस हैं, उन सबको सम कर दीजिए। एक फोर्स F. ओनली वन फोर्स एफ, सो दिस F. विल शो Yes, sir. F. 0। अच्छा, इसी तरह से इस पे भी अगर यानी राइट वाले पार्ट पर भी आप अप्लाई करेंगे नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, दिस विल गिव अस द सेम रिजल्ट, एफ इज इक्वल टू 0। Then we will apply net force in y direction is equals to 0. What will it give on the left part? Sir, RA RA plus plus V. V is equal to 0. Ra plus v is equals to 0. This will give v is equals to minus Ra। और लास्ट टर्न पे हमने Ra इवेल्युएट किया था क्या? Yes, sir. What was it coming out to be? जी, लास्ट टर्न में हमने दो इक्वेशन इवेल्युएट की थी। Sir, RA is equals to W minus W into W, W. और क्या किया था हमने? This was
W टाइम्स, अगर इस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट लेंगे तो क्या होगा, ये डिस्टेंस कितनी थी याद है आपको, B डिस्टेंस थी। सो W टाइम्स B इज इक्वल टू RA टाइम्स L। सो RA इज इक्वल टू WB/L. WB by L। इसी तरीके से RB was coming out to be WA by L। Okay, so this will become minus WB by L। अच्छा, और अगर आप इस वाले फिगर को इक्विलिब्रिएट करें यानी राइट वाले फिगर को, देन आल्सो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0। इसमें एक चीज रह गई है लेफ्ट फिगर में, कोई बता सकता है? सर आपने लोड नहीं लगाया W. लोड नहीं लगाया W, which is at distance B from the left right support। Then now can you please help me over here? Sir, Yes, minus V minus minus W V minus W minus W plus RB plus RB is equals to 0. is equals to 0। So V will be RB RB minus W. minus W। ओके, RB क्या इवेल्युएट किया है हमने यहाँ पे, W W A A by L. by L minus W, right? Okay, WA by L minus WL by L लिख सकते हैं ये। Yes, sir. ओके, WA by L minus WA plus B लिख सकते हैं। A plus B is same as L, right? Yes, sir. So it will become minus WB by L, right? So either you take the left part or the right part, you will get the same result। Now what about the moment? Can you tell me what about the moment? Let's take net moment about point A. We name it point A, this as point B। So net moment about A would be 0। This imply, yes, Danish, are you there? Can Danish tell? Atahar Ali? Danish? Atahar Ali? Osama Naseem? Yes, sir, present. हाँ ओसामा बताओ, यहाँ पे नेट मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0। सो व्हाट आर द different moments of different forces about point A? देखो यहाँ पे एक फोर्स आर ए है, आर ए का मोमेंट ए पॉइंट के अबाउट कुछ होगा। Yes, sir. आर ए का मोमेंट ए पॉइंट के अबाउट कैसे होगा, ये है ए पॉइंट और ये रिएक्शन आर ए जो फोर्स है वो उसी पॉइंट से सर आपका होके पॉइंटर नहीं दिख रहा है शायद। हाँ सर आपका पॉइंटर शायद दिख नहीं रहा है किधर चल रहा है, या फिर आपकी स्क्रीन यू आर नॉट एबल टू सी द स्क्रीन। नहीं सर, स्क्रीन तो दिख रही है लेकिन कुछ पॉइंटर नहीं चल रहा है। आर यू एबल टू सी द बीम which I have divided into two part? यस सर, स्क्रीन दिख तो रही है लेकिन पॉइंटर जो आप लिख रहे हैं अभी दोबारा। ये दिख रहा है? यस सर, सर।
यहाँ पे ए पॉइंट जो है, ये ए पॉइंट है, ये दिखा। इस पॉइंट यस सर। के पास होने वाला एक फोर्स है आर ए। तो मोमेंट अबाउट पॉइंट ए जो है, आर ए का कोई मोमेंट होगा ए पॉइंट के अबाउट? सर जीरो रहेगा वो। जीरो होगा। व्हाट अबाउट Yes. द मोमेंट ऑफ वी अबाउट पॉइंट ए? ये वी है, यस सर। ये वी फोर्स लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में। इस वी Yes, फोर्स sir. का ए पॉइंट के अबाउट कितना मोमेंट होगा? सर वी इंटू जो डिस्टेंस होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक्स एक्स डिस्टेंस है, तो क्या होगा बताइए? वी एक्स हो जाएगा सर। वी एक्स। शुड आई राइट इट पॉजिटिव और निगेटिव? हम एक्स एक्सिस को, Negative. जेड एक्सिस को आउट ऑफ द प्लेन ले रहे हैं, इनटू द प्लेन नहीं ले रहे हैं। तो इस v का मोमेंट जो होगा वो पॉजिटिव z डायरेक्शन में होगा, निगेटिव z डायरेक्शन में होगा? आउट ऑफ द बॉक्स ले रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। यस, सो इट विल बी v टाइम्स x। और कोई मोमेंट है, और कोई फोर्स है जिसकी वजह से मोमेंट लगेगा? फोर्स तो दो ही हैं इसमें, एक v है और एक ra है। f हमें पता चल गया कि 0 है। तो अब क्या होगा? vx प्लस एक मोमेंट ऑलरेडी है m। एम। ये मोमेंट दिख रहा है, यस सर। ये मोमेंट ऑलरेडी है। सो दैट विल बी एडेड। जब आप किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे तो दूसरे पॉइंट के अबाउट जो भी मोमेंट होगा वो सिंपली ऐड ऑन होगा। तो vx प्लस m is equals to 0, then m is equals to minus times minus of vx. And what is v? It is minus and then minus wb by l times x. यहां तक समझ में आ रहा है? यस Yes, सर। sir. So m is equals to wb by l times x. So this is the moment distribution, and w is equals to minus wb by l. Sorry. This is the shear force distribution. shear force में w क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। b अगर यहां देखें इस फिगर में इसमें w कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, और यहां मैंने कुछ गलत लिखा है। ये a था ना? Yes, sir. Okay, so a is constant, this b is constant. Okay, l is constant. So v का जो एक्सप्रेशन आ रहा है माइनस डब्ल्यू बी बाई एल, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। ओके, यानी x का फंक्शन नहीं है। अगर इसको आप प्लॉट करेंगे लेंथ के ऊपर, अगर आप तो v की जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, x is equals to 0, x is equals to a। तो shear force की वैल्यू क्या आएगी? shear force डायग्राम अगर आप प्लॉट करेंगे तो ये इस तरह से आएगा। इसकी वैल्यू क्या है? v is equals to w b by l। ओके, और बेंडिंग मोमेंट को अगर आप प्लॉट करेंगे तो क्या होगा? ये एक लीनियर एक लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन विद द स्लोप ऑफ डब्ल्यू बी बाई एल। ये कुछ इस तरह से होगा। ओके, यहां तक समझ में आ रहा है? अगर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अच्छा, आप में से कोई ये बताइए, ये x इज इक्वल टू a तक क्यों लिया मैंने? वाई नॉट x इज इक्वल टू l? ये l तक होगा, नहीं होगा क्या एक्सप्रेशन? सर लोड आ रहा है ना सर, पॉइंट लोड। हाँ, ये एक्सप्रेशन वहीं तक वैलिड है जहां तक ये पॉइंट है।
जैसे ही ये लोड जहां पे स्टार्ट होगा उस पॉइंट से पहले पहले तक ये एक्सप्रेशन वैलिड है। उसके बाद क्या होगा, हमने ये जो सेक्शन किया है यहाँ पे, ये जो सेक्शन किया है एट डिस्टेंस x, ये x 0 से लेके a तक के बीच में कहीं पर भी करेंगे, हमारा फ्री बॉडी डायग्राम जो ये बन रहा है, दिस विल ऑलवेज बी सेम, दिस विल नॉट चेंज। बट एज सुन एज वी गो बियॉन्ड a, यानी हमने अगर सेक्शन यहाँ पे किया होता तो ये जो डायग्राम है ये वैलिड नहीं होता। Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then let's सर make a, रिपीट करिएगा, yes, सर रिपीट कर दिएगा ये वाली बात एक बार। हाँ, ये हमने इसको सेक्शन किया है यहाँ पे, ठीक है, और फिर हमने उसको दो पार्ट में ब्रेक किया है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, ठीक है। और अब हमने इस पे सारे फोर्सेस अप्लाई किए हैं जो जो पॉसिबल हो सकते थे फोर्सेस, और फिर उनकी इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाई है, और जो अननोन फोर्सेस थे यानी शियर फोर्स, एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, इनको इवेलुएट किया है। यही तो किया है हमने। अब ये जो सेक्शन हमने एक्स जी डिस्टेंस सर। पे किया है, ये एक्स डिस्टेंस की हमने बात नहीं की है कि ये एक्स कितना है, एक्स इज इक्वल टू L/2 है या एक्स इज इक्वल टू A/2 है। हमने एक जनरल सेक्शन लिया है और बस वहां पे ये कंडीशन है कि एक्स, ये एक्सप्रेशन यानी ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो हमने की है ये तब तक वैलिड है जब तक ये सेक्शन हम कर रहे हैं ये x इज इक्वल टू 0, यानी यहां से लेके और यहाँ के बीच में अगर हम सेक्शन कर रहे हैं तो हमारा जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा वो ये वैलिड होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने सेक्शन यहां पे किया होता तो ये जो फोर्स W है ये यहां न कर लग के ये फर्स्ट वाले पार्ट में आ जाता। ये बात समझ में आई? Yes, sir. समझ गया। ओके, तो अब हम एक दूसरा सेक्शन करेंगे इसी का। अब हम सेक्शन यहाँ पे कर रहे हैं। सर ऊपर वाले फिगर का राइट साइड से हम नहीं निकालेंगे मूवमेंट? ऊपर वाले फिगर में राइट साइड पे जो डायग्राम बना है हाफ करने के बाद उसका मूवमेंट नहीं निकलेगा? उसका मोमेंट मैंने इसलिए इवेलुएट नहीं किया है कि वो दोनों तरीके से मोमेंट की वैल्यू सेम आएगी। हमने पहले नेट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 किया और दोनों तरफ से निकाला, एफ की वैल्यू सेम आई 0। यस सर। यस उसके सर। बाद हमने नेट फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन किया यहाँ पे, इस जगह पे और यस यहाँ सर। पे, और नेट फोर्सेस वाई डायरेक्शन में किया, वहां से वी की वैल्यू सेम आई, यस सर। ये वाली और ये वाली, ठीक है। अब हमने नेट sir. मोमेंट अबाउट ए किया लेफ्ट फिगर का, और वहां से बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आई mb, लेट्स नेम इट mb। ठीक है, तो हमने सेम एक्सरसाइज हम कर सकते हैं लेकिन उससे mb की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं बस ये शो करना चाह रहा था ओके। कि चाहे आप लेफ्ट फिगर लें या राइट वाला पार्ट लें, किसी को भी हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेके आएंगे, वी विल गेट द सेम रिजल्ट। तो यहाँ पे हमें एक जुडिशियली ऐसा वो पार्ट चूज करना होगा जो कि एक्सपीरियंस के साथ आपको आएगा। एक ऐसा पार्ट चूज करना होगा जिसमें हम जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन इजी हो। जैसे अगर आप देखें कि शियर फोर्स जब हमने इवेलुएट किया है लेफ्ट पार्ट में, हमें 3 स्टेप में रिजल्ट मिल गया है यहाँ पे।
करेक्ट। और यहाँ यस पे सर। राइट पार्ट में हमें बहुत कई सारी लाइनों के बाद हमें रिजल्ट मिला है। तो इसलिए हम अपना इंटेलिजेंस अप्लाई करेंगे और ये इवेल्युएट मतलब हम पहले ही जज कर लेंगे कि हमें इस तरह से रिजल्ट ज्यादा इजीली मिलेगा और हम वो काम करेंगे। ठीक है। नाउ वी विल कट द सेक्शन at a part at a position such that x is greater than a। ठीक है। और अब हम यहाँ पे इनको दोनों पार्ट्स को सेपरेट करेंगे। आर बी आर ए डब्ल्यू ओके। और ये डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है ये? X. x। नाउ this is the right phase, positive phase. Here I am applying V, here I am applying F, here F, this one. ओके। अब बताइए। सर हाँ सर क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए। सर ये जो मूवमेंट सर जो हम लगा रहे हैं दोनों पार्ट्स पे, सर ये किन फोर्सेस की वजह से आ रहा है? ये किन फोर्सेस की वजह से आ रहा है? ओके। ये एक्चुअली स्ट्रेसेस की वजह से आता है। होता क्या है, जब आप एक बीम को या एक रबर को अगर बहुत थोड़ा एक इनफ लेंथ का रबर आप लें, इरेजर अगर आप लें, उसको जब आप ये दोनों एंड से मोड़ने की कोशिश करेंगे। ओके 1 सेकेंड। स्क्रीन अब दिख नहीं रही ना शायद? नहीं दिख नहीं रही सर। सर। ओके। जी। होता क्या है कि जब आप इसको हम एक बीम लेते हैं, ठीक है, इसको हम इस तरीके से अगर बेंड करने की कोशिश करें, चाहे हम इस तरह का मोमेंट लगाएं दोनों एंड पे जो इसको बेंड करने की कोशिश करे, या फिर हम इसको सिंपली सपोर्टेड बीम पे रखें और यहाँ पे हम एक फोर्स लगाएं, तो होता क्या है, इंट्यूशन से अगर आप देखें तो इसका क्या होगा, कैसा शेप होगा? कुछ ऐसा होगा। यस सर। ओके। जब हम ऐसा फोर्स करेंगे तो अब आप देखिए होता क्या है, जैसे हम इसका एक बहुत छोटा सा पार्ट कट करते हैं इतना, ठीक है, इसको हम अब एनलार्ज करते हैं। डिफॉर्मेशन से पहले ये ऐसा शेप था, डिफॉर्मेशन के बाद ये कुछ इस तरह का शेप होगा। यस सर। यस सर। ओके। अब ये बताइए, अगर सपोज ये मिड एक्सिस है जिसको हम अभी डिफाइन करेंगे न्यूट्रल एक्सिस, आप पढ़ के भी आए होंगे, न्यूट्रल एक्सिस का नाम तो शायद सुना ही होगा। यस सर। बेसिकली न्यूट्रल एक्सिस वो होती है जिसकी लेंथ डिफॉर्मेशन और आफ्टर डिफॉर्मेशन सेम होती है। तो अब आप ये बताएं कि ये एक लेंथ है डिफॉर्मेशन से पहले, एक लाइन है, आपने एक मार्क कर लिया उस पे लाइन, और जब आपने उसको डिफॉर्म कर दिया, उस पे फोर्स लगाया, वो लाइन ये हो गई। और एक दूसरी लाइन लें रेड कलर की,
और उसकी अब बताइए ग्रीन कलर की जो लाइन है उसकी लेंथ चेंज हुई या नहीं हुई? सर कम होगी थोड़ी सी। उसकी लेंथ चेंज हो गई, वो कम हो गया, यानी वो पोर्शन न्यूट्रल एक्सिस से जो ऊपर का पोर्शन था वो कहाँ किस स्टेट में है? कंप्रेस्ड स्टेट में है, वहां कंप्रेशन हो गया है। और जो नीचे रेड लाइन वाला एरिया है वहां पर क्या होगा? हेलो सर। टेंशन। टेंशन में होगा। एक्सटेंशन हो जाएगा, वो टेंशन में होगा। तो अगर सर आप इस लाइन सेंट्रोइडल पर एक्सेस जो है वो तो सेम रहेगा ना? सेंट्राइडल एक्सिस, यू मीन द न्यूट्रल एक्सिस, राइट? यस What सर। do you mean by centroidal axis? Centroid of area, right? यस सर। Yes. अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो ये सेंट्राइड जो होगा, इसका एरिया का सेंट्राइड वो कहीं बीच से पास होगा। और अगर ये सेम मटेरियल है, यानी ये सेम एक ही तरह का मटेरियल है, तो इसका एरिया का सेंट्राइड न्यूट्रल एक्सिस से ही पास होगा। लेकिन अगर ये अलग अलग मटेरियल है, सपोज ऊपर का हिस्सा स्टील है, नीचे का हिस्सा एल्युमिनियम है, तो इसके सेंट्राइड और न्यूट्रल एक्सिस का जो लोकेशन होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल एक्सिस की बात करेंगे, सेंट्राइड की अभी बात नहीं करेंगे। तो ऊपर का पोर्शन इस कंप्रेस्ड स्टेट में होगा, नीचे का पोर्शन जो है टेंशन स्टेट में होगा। तो होता क्या है कि अब ये वाला पोर्शन, यानी यहाँ पे इस पे फोर्स, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, टेंशन में है। तो और अगर हम इसको प्लॉट करने की कोशिश करें तो होता ये है कि ये बाहर वाला जितना दूर होगा पोर्शन, वहां पे टेंशन उतना ज्यादा होगा और यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स होगा। तो अब बताइए इन फोर्सेस का नेचर क्या है? यानी ये सारे फोर्सेस जेड एक्सिस के अबाउट कुछ मोमेंट क्रिएट करेंगे, नहीं करेंगे? यस सर। सो दैट इज द मोमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। यस सर, क्लियर। Okay. So okay, now let's do the same thing what we did previously. Net forces in x direction is equals to 0. Net forces in x direction is equals to 0 on the left and right part. On the left part, what will happen? Only force available in x direction is F. This will be 0. This will also provide F is equals to 0. Now net force in y direction is equals to 0. What are the forces? RA minus W plus V is equal to 0. RA minus W minus plus W V plus V is equals to 0. So V is equals to W W minus RA. ओके, RA क्या था वहां पे पहले? W याद है आपको? RA की BYL. my RA was WB by L. WB by L, जिसको आप लिख सकते हैं WA by L. ओके, ये आप निकाल सकते हैं। W is nothing but W times A plus B by L. यहां से भी हम इवैल्यूएट करते हैं। Net force y direction is equals to 0. This will give राइट वाले पार्ट में बताइए साहब। This is V, so minus V plus RB is equals to 0.
V इज इक्वल टू RB की वैल्यू कुछ WA/L थी। दोनों जगह से आपको सेम रिजल्ट आएंगे। अब हम इस वाले पोर्शन में नेट मोमेंट अबाउट, लेट्स से वी आर, दिस इज पॉइंट B, तो नेट मोमेंट अबाउट B क्या होगा? बताइए, नेट मोमेंट अबाउट B। RB का कोई मोमेंट होगा B पॉइंट के अबाउट? V नो in सर। minus V V into into B minus MB. माइनस V into V B minus MB. V इंटू B। B व्हाट इज दिस डिस्टेंस? सर L माइनस एक्स। L माइनस अच्छा एक्स। अच्छा सो माइनस V टाइम्स L माइनस एक्स। और क्या होगा साहब? RB का कोई मोमेंट होगा B के अबाउट? नहीं होगा। MB का? यस सर MB। अच्छा, ये माइनस V इंटू L माइनस एक्स होगा, प्लस होगा? V का साइन प्लस होगा माइनस होगा? इसका मोमेंट माइनस होगा सर। पॉजिटिव z डायरेक्शन में होगा, तो ये प्लस होगा। और MB क्या होगा? माइनस MB इज इक्वल टू 0। ये क्लियर है? अनस? ये सर क्लियर है। ओके, सो MB is equals to V times L minus X। V क्या एक्सप्रेशन आया है? WA/L, और ये होगा L माइनस एक्स। ठीक है। आपके फ्रेंड पहले बोल रहे थे कि हम इससे अगर निकालें तो क्या आएगा? मोमेंट अबाउट A, net moment about A is equals to 0. This will give you MB plus V into X। और क्या एक्सप्रेशन होगा भाई? माइनस W into A is equals to 0. This imply MB is equals to W times A minus V times X, which is W times A minus V का एक्सप्रेशन है WA/L times X। Okay, which is same over here, WA minus WA/L times X। ठीक है। So this यस is सर। how we evaluate internal forces, that is internal moment and shear force, and then we can plot this। इस एक्सप्रेशन को आप प्लॉट कर सकते हैं। इसके आगे, यहाँ तक आपने प्लॉट किया था, अब इसके आगे जो है इसी तरीके से हम प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है? शेयर फोर्स WA/L, और उससे पहले क्या था? माइनस WA/B। तो ये यहाँ से ये हो जाएगा, दिस इज WA/L, X is equals to L, this point is X is equals to A। ठीक है। इसी तरीके से MB क्या हो गया? WA माइनस WA/L X। ओके, ये यहां तक जाएगा और फिर यहां से ये हो जाएगा। इसका स्लोप क्या है? स्लोप क्या है भाई? स्लोप इज
डब्ल्यू बी बाई एल, और इसका स्लोप क्या होगा, माइनस डब्ल्यू ए बाई एल. इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir, clear. Okay. Now I will give you a question to solve, and then we will meet in the next one and see. Find the reaction and okay, I will share the question with you. Anything else do you want to ask? I think No, sir. okay. So are you guys revising the notes? Yes, sir. Okay. Yes, sir. In the next turn, we will solve two questions, a couple of questions, and also I will share with you tutorial sheet, okay, which I expect you guys to do. And if there is any problem with any of the question in the tutorial sheet, then you can ask in the class. And also, if you feel at any point of time that you are having some problem, then you can ask me. You can just send a message on the classroom, Google Classroom. Okay. Okay, sir. sir. Okay. Okay, sir. Assalamu Now alaikum, the sir. time is over. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Walaikum assalam. Assalamu alaikum. Walaikum assalam.